हमारा टॉपिक है एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन। आज के वीडियो में हम पूरा एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन कंप्लीट कर लेंगे और कल का वीडियो हमारा लास्ट होगा इंट्रा सेल्यूलर डोमेन के बारे में। मैं चाहता हूं कि अब तक हमने जो जो पढ़ा है एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन के बारे में उसका हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं, तो आपको अच्छे से पूरा रिवाइज हो जाएगा ये लेक्चर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपके शायद कोई भी डाउट है वो भी आज क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फटाफट क्वेश्चंस मैं आपको देता हूँ और आप सॉल्व कीजिए। A ligand binds to the receptor and it shows the biological modification. It is a receptor or not? Yes or no? Yes, it is receptor. Okay. A ligand binds to the receptor, but it doesn't show any biological modification or any type of modification. It is a receptor or not? No, it is not a receptor. The place where the ligand binds to the receptor, what we call that place? The place where the ligand binds is called as ligand binding domain. Okay, what are the ligands? Ligands maybe are the hormone, maybe neurotransmitter, or maybe toxins or certain chemical substances. Okay, how many types of suppose the one hormone is peptide and one hormone is not an peptide, so which domain is used, extracellular domain or intracellular domain? For the also the molecular weight is there, so which domain we are going to use? Of course, we are going to use the extracellular domain. A ligand who have the high molecular weight or a polar, we used uh, extracellular domain. Okay, how many types of extracellular domains are there? There are three types of extracellular domains: serpentine receptors, ligand by ion channels, and third, there is an one passed receptor. Why we call that serpentine receptor as a seven passed receptor or G stimulatory receptor? Because it's coupled with G stimulatory protein. What the function of G stimulatory protein? The G stimulate when a ligand binds uh, to the to extracellular domain. So okay, first question is why we call the seven passed receptor? We call the seven passed receptor because it is in seven times. Seven times it's coming out of the membrane, coming, going out of the membrane seven times. That's why we call it seven passed receptor. Why we call uh, G coupled receptor? Because the intracellular domain is linked with G stimulatory protein. What is the G protein? The G protein is basically is a trimeric protein uh, of alpha subunit, beta subunits, and gamma subunits, and it's present inside the cell. What was the function of G stimulatory protein? On alpha, there is a binding site where it is an inactive. When there is a no ligand, it is an inactive. They left the GDP is with alpha, but when the extracellular domain is active, GTP comes and alpha leaves the GDP and it binds with GTP and it activates the processes. What type of processes they activate? The goes and binds with alpha goes and bind with adenyl cyclase. Adenyl cyclase converts the ATP into cyclic AMP, and cyclic AMP level goes high and it activates the protein called protein kinase A, and protein kinase A activates the certain transcriptional factors and uh, it phos protein kinase phosphorylate certain enzymes to inactive form to converts the activate form. It activates a certain transcriptional factor, so there will be uh, whole genomic expression would be changed. Okay. Second thing, the muscarinic receptor. When in muscarinic receptor, the ligand is acetylcholine. Acetylcholine comes and it couples with G inhibitory protein. What the G inhibitory do?
the alpha inhibitory goes to the adenyl cyclase and it binds and it decreases the cyclic AMP level. So it decreases the cyclic AMP level. So there will be less activation of protein kinase and there will be less activation of phosphorylation because what the epinephrine does, it increases the cyclic AMP level while the muscarinic receptor acetylcholine decreases the level of cyclic AMP. Means G inhibitory protein basically what they do, decreases the cyclic AMP level. The receptor which are present like the serpentine receptor on cardiac cell, the example is beta 1 adrenergic receptor. Okay, and the receptors which are present on the smooth muscles as a muscarinic receptor, the receptor name is itself the muscarinic receptor. It is a type of serpentine receptor. Okay, फिर हमारे पास हमने कल फिर ligand ion channels. Ligand ion channels are operated by the special ligand chems and it attaches and allows the movement. Okay, we will see the different types of uh, serpentine receptor, the cholinergic receptor. Cholinergic receptors are of two types, the nicotinic receptors and muscarinic receptor. Nicotinic is a not an receptor. It will not count under the serpentine receptor. Why? Because it is an ion channel. The muscarinic receptor, who is this muscarinic receptor? The muscarinic uh, receptor, the acetylcholine comes and it binds. Okay, there will be some drugs names are coming here, so maybe I'm facing the problem of pronunciation, so you can see the name, so that's why I'm going to that slide. See, the cholinergic receptors are of two type, nicotinic receptor and muscarinic receptors. Muscarinic receptor, it's coupled with G inhibitory and it decreases the cyclic AMP as we discussed. Now, which drugs inhibits the activity of a binding of acetylcholine to the muscarinic receptor, that is atropine, scopolamine and perinenzepine. Which are those three drugs which inhibit the binding from acetylcholine to the muscarinic receptors are of three drugs: atropine, scopolamine, and peripherin. Okay, there is an adrenergic receptor. Adrenergic receptor, that is alpha 1 receptor. Alpha 1 receptor, it's basically in communication with uh, GQ coupled protein. GQ coupled protein. What that will do when the GQ protein is activated, it's going to stimulate what? Phospholipase C. The phospholipase C have unique function. It goes to the cell membrane and it stimulates the PIP2 proteins, and PIP2 diversified into two parts: IP3 inositol triphosphate and DAG, diacyl glycerol. What the IP3 will do? IP3 yani inositol triphosphate, it's going to work on the special membrane, that is an endoplasmic reticulum. The endoplasmic reticulum have so many different functions. Among them, the one function is the storehouse of the calcium, and it goes and binds with the endoplasmic reticulum channels, and it leads to the it brings the calcium from into the cytosol from the endoplasmic reticulum, and the level of calcium goes high, and calmodulin protein comes and calcium both combines, and it will lead to the activate of cam kinases, and cam kinases will further lead to the phosphorylation and all those processes. What the function of DAG, diacyl glycerol? Diacyl glycerol comes and it activates the protein kinase C, and protein kinase C will lead to the function of certain phosphorylation. Okay. Second is alpha 2 receptors. Alpha 2 is an coupled with G inhibitory. Then it is beta 1, beta 2 and beta 3 adrenergic receptor. All they are coupled with G stimulatory. What they will do, they will increase the cyclic AMP level. Which drugs are going to inhibit the alpha 2 receptor? That is euhambin.
which two drugs we are not sees there is an alpha 1 or alpha 2 receptor, but it blocks on it. These two drugs works on even alpha 1 receptor or even alpha 2 receptor. Which are those two drugs? There is an pentolamine and phenoxybenzamine. Pentolamine and phenoxybenzamine. Okay, which drug which only work on alpha 1 receptor? There is prezazone and trazazone. Or which drug it's going to work on only the beta 1? There is an uh, acetyl butyl 18 see this etinol. Which drug will block alpha beta 1, beta 2, beta 3 receptors? Those drugs are where propanol, metoprolol, acebutolol, esmolol, tiamol, and etinol. Propanol, metalol, acebutolol, esmolol, etinol, and tiamol. It's not like that it blocks only the beta 1, but it shows the more adverse effect on beta 1 compared to other beta 2 and beta 3 etanol. But it also shows the effect on beta 2 and beta 3, but its effect is less. Okay. Then there is our third receptor is dopaminergic receptor. As you know, the D1 receptor and D2 receptor. D1 receptor, it's coupled with G stimulatory and increases the cyclic AMP level, and D2 receptor, it's coupled with G inhibitory, it decreases the cyclic AMP level. Here the Parkinson's disease is there. Basically, the substantia nigra is the where they basically sends the dopaminergic neurons to the basal ganglia by the nigrostriatal pathway. As in some uh, a after some time the disease after some time, basically what happens after some time, in old ages the dopaminergic neurons, the capacity of production from the substantia nigra to the basal ganglia, it's going to be less by day in old ages. Only in some peoples, not in everyone. In only some people, it's substantia nigra, it's going down, and so and then after sometimes the neurons will not reach to the basal ganglia because it's going to be completely stopped, and so its nigrostriatal pathway is degenerates, and it lead to the parkinsonism parkinsonism parkinson sorry parkinson Parkinson disease. It leads to in Parkinson disease. It's have the tremor, rigidity, and agnesia. Difficult in movement. Agnesia means difficult in movement. Okay. The fourth is our purinergic receptor. Purinergic receptors are of two type: A type and P type. A type is uh, sensitive to adenosine, and P type is sensitive to ATP. A type is sensitive to adenosine, P type is sensitive to ATP. Basically, one neuron have high metabolic rate. They are producing very high amount of adenosine in there, and the neighbors have the receptor of adenosine, so the adenosine can easily cross the neuron membrane. So the adenosine goes to suppose B and D neurons, and they will, and B and D neurons will let to know that the C neuron have very high capacity of very high metabolic rate. Third is gamma receptor. Gamma receptors are of two type: A type and B type. What the A and B type they will do? The A type is the gamma is released by one neuron, and they are going to bind with chloride channels, and they stimulate the chloride channels, and they lead to the influx of very high amount of chlorides into the cell or neurons, and they will become hyper polarized or
they become hyperpolarized and the cell would become highly negative and they become inactive. Second is GABA B receptor. What they will do? They are coupled with G inhibitory, and when the G inhibitory decreases cyclic, the G inhibitory, the alpha inhibitory goes and binds with adenyl cyclase, while in stimulatory, the beta and gamma, they will wait for what the alpha will come and we combines together, while in G inhibitory they didn't wait, and the gamma and beta they go and binds with the potassium channels, and potassium is very high amount inside the cell, and outside the cell the potassium is very less. So the potassium will move from higher concentration to the lower concentration, and the cell will become hyperpolarized. The cell will become hyperpolarized and or highly negative, and they inhibits the cell. Which drugs will help to do the GABA A receptor? There is a benzodiazepines and barbiturates, and in GABA B receptor there is an baclofen. Is an work as an agnostic, means the here see the GABA A receptors the activity increased, means we are comparing with in compared to the neurons, means the GABA receptor activity is increased, the cell will become highly negative. The cell will be, if the cell will become highly negative, the cell will not be able to function properly. So which two drugs increases the GABA A activity? The first is barbiturates and benzodiazepine. Second one is baclofen stimulates the GABA receptor, means baclofen is in also stimulates the GABA B receptor. Okay, Seclofen is a drug which pro, which protects of binding from GABA as a GABA to GABA receptor. यानी ये रिसेप्टर है, ये गाबा है, ये मेरा चेहरा, इन दोनों को रोक रहा है बाइंडिंग से। वैसी कौन सी ड्रग है? सेक्लोफिन। ये दोनों को बाइंड होने से जो ड्रग रोकती है वो कौन सी ड्रग है? सेक्लोफिन। और ये साइक्लोफेन कहाँ अपना इफेक्ट दिखाती है? गाबा बी रिसेप्टर को। ये जो साइक्लोफेन है वो कहाँ अपना इफेक्ट दिखाती है? गाबा बी रिसेप्टर को। ठीक है, फिर हमारे पास आता है टीएसएच रिसेप्टर। टीएसएच रिसेप्टर क्या है हमारे? ये रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होता है? थायराइड फॉलिकुलर सेल्स में ये रिसेप्टर्स हमारे प्रेजेंट होते हैं, और इसमें कुछ म्यूटेशन की हो जाने की वजह से हमारे ये जो रिसेप्टर है वो ओवर फंक्शनल हो जाता है, और ओवर फंक्शनल हो जाने की वजह से हमारे को फॉलिकुलर एडिनोमा या फिर थायराइड एडिनोमा होता है। ठीक है, the TSH ligand, the intracellular coupled with G similar protein. In some cases, the receptor would become mutant, and means the receptor would become abnormal, and this mutation receptor overstimulating follicular cell and the excessive proliferation happens. LH receptor क्या करवाता है? यानी ये प्रीकॉशियस प्यूबर्टी करवाता है। यानी मीनिंग ये है कि LH रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, अपने म्यूटेशन हो जाता है एलएच के रिसेप्टर में, तो फिर वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, तो क्या हो जाता है? प्रीकॉशियस प्यूबर्टी हो जाती है। एसीटीएच रिसेप्टर क्या करता है हमारे में? फैमिलियन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स करवाता है। यानी हमारे एड्रिनल ग्लैंड पे एसीटीएच आके जो वर्क करना था वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि एसीटीएच के रिसेप्टर में क्या हो गया? कुछ म्यूटेशन हो गया है। It is also produced by the anterior pituitary, and this receptor were present on adrenal cortex, and it also on serpentine receptor. In some cases, the receptor were mutant, and it will not respond to the ACTH and adrenal cortex, and will not able to produce enough glucocorticoids, and that will lead to the mammalian glucocorticoid deficiency. Rhodopsin receptor, it's again produce the retinitis pigmentosa. This receptor would present on retina, present on the rods,
and the rhodopsin receptors on the rods defective and inherited will leads to the retinitis pigmentosa। फिर हमारे पास आ जाते हैं न्यूरोपेप्टाइड्स। न्यूरोपेप्टाइड्स में हमारे पास आता है वेसोप्रेसिन। इसमें हमारे पास दो टाइप के रिसेप्टर होते हैं, V1 रिसेप्टर एंड V2 रिसेप्टर। जो वेसोप्रेसिन की जो एक्टिविटी, जो वेसोप्रेसिन है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे वेस्कुलर सिस्टम में। और वेसोप्रेसिन हमारे बॉडी में बढ़ा तो हमारे में क्या बढ़ जाएगा, हमारा जो वेस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन वो करवाएगा V1 रिसेप्टर। और V2 रिसेप्टर्स हमारे बेसिकली न्यूरॉन्स के एंड पे प्रेजेंट होता है, यानी कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट्स के साइड प्रेजेंट होते हैं। जब हमारी बॉडी में V1 बिल्कुल ही प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा तो वो हमारे बॉडी में ADH इज नॉट प्रोड्यूस्ड एट ऑल, यानी ADH बिल्कुल ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा, उसके रिलेटेड कोई रिस्पॉन्स हमारे बॉडी में शो नहीं होगा तो वो क्या करेगा, क्रेनियल डायबिटिस इंसिपिडस करेगा। बट हमारे बॉडी में प्रोड्यूस तो हो रहा है, EDH और वेसोप्रेसिन दोनों ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, बट हमारे जो रिसेप्टर्स है वो आइडेंटिफाई करने से मना कर ले तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रोजेनिक डायबिटिस इंसिपिडस बोलते हैं। The vasopressin, the V1 receptor, it will lead to the stimulation of vascular contraction. It will present on the last part of the nephron. You know, the last part of the nephron is consist of ADH and the last cortical collecting duct. If this receptor would defective, that may result in X-linked diabetes insipidus. The diabetes insipidus means the patient have the problem of actions of ADH on the last part of the nephron. ADH is not produced at all. The patient could not hold the water and lots of the excessive loss of water and leads to the cranial diabetes insipidus. The vasopressin is produced in good amount, but the last part of nephron doesn't respond. We called it nephrogenic diabetes insipidus. And all the types of nephrogenic diabetes insipidus is inherited with the defective of X-linked inherited defect. ओके हमारे पास दूसरे नैरोपेप्टाइड्स कौन से, एंजियोटेंसिन, ओपिएट्स, वेजोएक्टिव एंड ऑक्सीटोसिन। ठीक है, हमारे पास अभी हमने ये सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स की टाइप देखी, कौन से थे, कोलिनर्जिक रिसेप्टर, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, फिर हमारे पास कौन सा है, डोपामिनर्जिक रिसेप्टर, फिर प्यूरिनर्जिक रिसेप्टर, गाबा रिसेप्टर्स। ठीक है, गाबा रिसेप्टर, फिर LH रिसेप्टर्स। ठीक है, LH रिसेप्टर, ACTH रिसेप्टर्स, फिर हमारे पास रोडोप्सिन रिसेप्टर, फिर हमारे पास कौन से रिसेप्टर्स हैं, फिर हमारे पास आए न्यूरोपेप्टाइड्स। न्यूरोपेप्टाइड्स में कौन कौन से थे, वेजोप्रेसिन, एल्डोस्टेरोन्स, सॉरी वेजोप्रेसिन, ओपिएट्स, ऑक्सीटोसिन, और कौन सा था, एंजियोटेंसिन, वेजोएक्टिव। ठीक है, वापस वेसोप्रेसिन था हमारे पास, एंजियोटेंसिन था, ओपिएट्स थे, वेजो एक्टिव था, ऑक्सीटोसिन था, और हमने TSH रिसेप्टर्स इसमें भूल गए हैं। हम TSH रिसेप्टर्स भूल गए थे, यानी हमारे पास वापस रिवीजन करते, सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स के कितने टाइप्स हैं, कोलिनर्जिक रिसेप्टर, डोपामिनर्जिक रिसेप्टर, फिर हमारे पास कोलिनर्जिक, एड्रेनर्जिक, डोपामिनर्जिक, प्यूरिनर्जिक, फिर हमारे पास प्यूरिन गाबा गाबा रिसेप्टर्स, फिर हमारे पास TSH रिसेप्टर्स, फिर LH रिसेप्टर, ACTH रिसेप्टर्स, रोडोप्सिन रिसेप्टर्स, और फिर हमारे पास न्यूरोपेप्टाइड्स। न्यूरोपेप्टाइड्स में हमारे पास कौन से थे, वेसोप्रेसिन, एंजियोटेंसिन, ओपिएट्स, ऑक्सीटोसिन, और वेजो एक्टिव इंटेस्टिनल पेप्टाइड, VIP। इधर हमारा पूरा सर्पेंटाइन रिसेप्टर खत्म होता है। फिर हमारे पास आता है आयन चैनल्स, आयन लाइगेंड बाइंडिंग आयन चैनल्स। उसमें भी हमारे पास आयन चैनल्स टोटल 3 टाइप्स के होते हैं, वोल्टेज ऑपरेटेड आयन चैनल्स, फिर हमारे पास आता है लाइगेंड ऑपरेटेड आयन चैनल्स, और मैकेनिकल प्रेशर, यानी वोल्टेज के डिफरेंस की वजह से जो आयन चैनल्स ओपन हो गए इसको हम वोल्टेज ऑपरेटेड आयन चैनल्स बोलते हैं। फिर हमारे लाइगेंड के साथ ऑपरेटेड होते हैं तो उसको हम लाइगेंड ऑपरेटेड आयन चैनल्स बोलते हैं। और तीसरी हमारी जो मैकेनिकल प्रेशर्स
के रिलेटेड ऑपरेटेड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल प्रेशर आयन चैनल। फिर अभी हम देखते हैं कि मैकेनिकल प्रेशर मेन हमारा आज का है कि लाइगेंड ऑपरेटेड आयन चैनल्स। अभी उसमें हमारे पास दो टाइप, लाइगेंड ऑपरेटेड आयन चैनल्स के दो टाइप है हमारे पास, एक्साइटेटरी ट्रांसमिटेड आयन चैनल्स और इनहिबिटरी ट्रांसमिटेड आयन चैनल्स। एक्साइटेटरी में भी वापस तीन टाइप है हमारे, वो तीन टाइप है, तो वो हम अभी देखते हैं। ये हमने कल के वीडियो में पूरा ही कवर किया था। निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर, निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर यानी यहाँ पे हमने जैसा अभी देखा कोलिनर्जिक रिसेप्टर, कोलिनर्जिक में जो सरपेंटाइन में जो एसिटाइल कोलिन है, ऐसा अकेला है कि जो सरपेंटाइन में भी वर्क करता है और आयन चैनल्स में भी वर्क करता है। बट आयन चैनल्स में इसको हम निकोटिनिक कोलिनर्जिक चैनल रिसेप्टर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे आयन चैनल्स के साथ निकोटिन भी बाइंड करता है। निकोटिन बाइंड करता है तो क्या होगा, व्हेन द एसिटाइल कोलिन और निकोटिन दोनों में से कोई भी एक बाइंड हुआ तो उसमें मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमारी -90 मिली वोल्ट होती है। ठीक है, अभी एसिटाइल कोलिन और निकोटिन में से दोनों में से कोई भी एक बाइंड हुआ तो हमारे आउटर सेल में सोडियम का लेवल ज्यादा है, तो सोडियम क्या मूव करेगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, तो लॉट्स ऑफ सोडियम कम्स इनटू द सेल, little bit calcium also being came into the cell, and the membrane potential from -90 millivolts it tries to move towards the threshold potential, यानी वो कन्वर्ट कर रहा है कि इसको माइनस से पॉजिटिव में वो कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, अभी क्या होगा, माइनस से पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा यानी थ्रेशोल्ड पोटेंशियल वहां पे जाके रीच हो गया, तो जितने भी वोल्टेज ऑपरेटेड आयन चैनल्स थे वो खुल गए, और वह और वो चैनल्स खुल गए। तो यानी क्या किया इसने बेसिकली, निकोटिन या एसिटाइल कोलिन दोनों में से एक ने हमारे सेल्स को स्टिम्युलेट किया। ठीक है, और मैं बताना, और जैसे सोडियम और कैल्शियम सेल के अंदर आता है वैसे ही बहुत ही कम अमाउंट में हमारा पोटेशियम सेल से बाहर जाता है। फिर हमारे पास दूसरा रिसेप्टर क्या है, एक्साइटेटरी और ट्रांसमिटेड गेटेड चैनल में हमारा दूसरा रिसेप्टर है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन। 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन बहुत, यानी सॉरी, ट्यूबरक्युलारी एंड अल्फा बंजेरोटॉक्सिन, एसिटाइल कोलिन या फिर निकोटिन को दोनों में से बाइंड होने में किसी को एक को रोकता है। कौन, हमारा अल्फा ट्यूबरक्युलारी या तो फिर अल्फा बंजेरोटॉक्सिन। ये दो ड्रग एसिटाइल कोलिन या तो फिर निकोटिन दोनों में से किसी एक को बाइंड करने में रुकते हैं। अभी हमारे पास है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन के बहुत इजी फंक्शन है। एक न्यूरॉन ने 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन को छोड़ा, दूसरे न्यूरॉन के पास उसका रिसेप्टर है, वहां जाके उसने क्या किया, इन्फ्लक्स करवाना स्टार्ट कर दिया और वो सेल को स्टिमुलेट कर दिया। अभी ये दो ड्रग को, ये यहाँ पे तीन ड्रग है, एंटी साइकोटिक ड्रग, एंटी मेटिक ड्रग और एंजियोलाइटिक ड्रग। ये तीनों ड्रग क्या करती है, ये रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है और यहाँ पे 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन बाइंड ही नहीं कर पाता। कौन सी तीन ड्रग है, एंटीमियाटिक ड्रग, एंटी साइकोटिक ड्रग और एंजियोलाइटिक ड्रग। फिर हमारे पास आता है ग्लूटामेट रिसेप्टर। ग्लूटामेट जो का जो रिसेप्टर है वो अपने आप में ही एक स्पेशल रिसेप्टर है। क्यों, क्योंकि ये रिसेप्टर का नाम क्या है, एन मिथाइल डी एस्पार्टेट रिसेप्टर, NMDA। बेसिकली ये रिसेप्टर को क्या चाहिए पता है, कि रिसेप्टर को बाहर से ग्लूटामेट चाहिए और अंदर से वोल्टेज डिफरेंस चाहिए, तभी जाके ये चैनल खुलेगा। ये चैनल इनएक्टिव है वो हमको कैसे पता चलेगा, क्योंकि बाहर जब तक इस चैनल पे Mg+ अटैच्ड है तो यानी ये चैनल इनएक्टिव है। बट जैसे ही ग्लूटामेट आया और अंदर से वोल्टेज डिफरेंस हुआ तो Mg+ पुश्ड आउट हो जाएगा और सारे सोडियम कैल्शियम का इन्फ्लक्स इनसाइड दिस सेल शुरू हो जाएगा। ठीक है, यानी ये रिसेप्टर को हम क्या बोलते हैं, एन मिथाइल डी एस्पार्टेट रिसेप्टर। ठीक है, अभी ये रिसेप्टर को यानी ग्लूटामेट को बाइंड करने से रोकती है। जो वो दो ड्रग का नाम क्या है, फेनाइसाइक्लिन, फिनसाइक्लिडिन और डिजोसिलिपिन, डाइजोसिलिपिन। फिनसाइक्लिडिन और डाइजोसिलिपिन ये ग्लूटामेट को बाइंड करने से रुकती है रिसेप्टर में। ठीक है, अभी ये बाइंडिंग को रोकती है
किसको, ग्लूटामेट को बाइंड होने से कौन सी दो ड्रग रोकती है, डाइजोसिलिपिन और फिनसाइक्लिडिन। और क्या हो जाता है, ये बाइंड नहीं होते तो हमारे बॉडी में क्या हो जाता है, बेसिकली हेलुसिनेशन स्टार्ट हो जाता है। और ये ग्लूटामेट रिसेप्टर्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये क्या करता है, बेसिकली ये प्रेजेंट होते हैं हमारे हिपोकैम्पस में, और हिपोकैम्पस का मेन फंक्शन क्या है, हमारी मेमोरी प्रोसेसिंग में। ठीक है, अभी जब आपको कोई डिजीज हुआ या कुछ हुआ तो एनएमडीए के रिसेप्टर्स है ना, कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो जाएंगे। तो ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे तो वो भी एक दिक्कत करता है कि हैवी इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम कर देता है। तो हैवी, तो फिर क्या हो जाता है, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज हो जाती है बेसिकली, क्योंकि कैल्शियम की टॉक्सिसिटी बढ़ गई। क्योंकि जो भी चीज हमारी बॉडी में आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, इक्वल अमाउंट में। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ ज्यादा ही अमाउंट में कैल्शियम हमारी बॉडी में आ रहा है, तो उसकी क्या होगी, कैल्शियम की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए ये क्या करता है, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज। अभी इनहिबिटेड ट्रांसमिटेड गेटेड चैनल्स में भी दो है, गाबा रिसेप्टर्स और ग्लाइसिन। हमको ग्लाइसिन की दो ही चीजें याद रखनी है। वो है फर्स्ट, ये का प्रेजेंट स्पाइनल कॉर्ड में, ये बेसिकली प्रेजेंट है। और ये क्या करेगा कि क्लोराइड चैनल्स के साथ जाके ग्लाइसिन बाइंड करेगा और क्लोराइड का इन्फ्लक्स इनसाइड करवा देगा और नेगेटिव होगा बेसिकली। यानी सेल का हमारा जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या था, -90 मिली वोल्ट, और ये क्लोराइड्स के साथ जगाया तो सेल क्या बिकम -90 वोल्ट से जो उसको थ्रेशोल्ड पोटेंशियल की तरफ जाना था, यानी स्टिमुलेट होना था, उसकी वजह से वो अवे फ्रॉम थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जा रहा है, यानी सेल क्या भी हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आता है हमारा गाबा रिसेप्टर्स। गाबा रिसेप्टर्स के हमने जो देखे थे, जो एंटागोनिस्ट होते हैं गाबा रिसेप्टर्स के, यानी गुड होते हैं फॉर न्यूरॉन। वैसे तीन ड्रग है, यानी वो बाइंडिंग को रोकते हैं गाबा से। हमने साइक्लोफेन गाबा बी रिसेप्टर में देखा था, यानी गाबा ए रिसेप्टर में कौन सा है, पिकेरोटॉक्सिन, बिक्यूक्यूलिन और पेनिसिलिन। गाबा ए रिसेप्टर में जो उसके एंटागोनिस्ट है, यानी गाबा को बाइंड करते हैं रिसेप्टर से बाइंड होने में, उसके कौन से ड्रग है, पिकेरोटॉक्सिन, बिक्यूकिलिन और पेनिसिलिन। और एग्नोसिस्ट है, यानी उसको स्टिमुलेट करते हैं, वो कौन से है, बेंजोडाइजापिन, बार्बिटूरेट्स एंड स्टेरॉइड मेटाबोलाइट्स। ठीक है, अभी एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, आज का मेन टॉपिक तो यही है हमारा, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। ये हमने कल के वीडियो में थायरोकाइनेसिस रिसेप्टर के बारे में देखा था, बट मैं श्योर हूँ शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, तो मैं बेसिकली आपको बताता हूँ। वेट, सपोजिंग ये मेरा सर है, यहाँ पे आके लाइगेंड बाइंड हुआ, तो लाइगेंड यहाँ पे आके बाइंड हुआ, ये मेरे जो इंट्रासेल्युलर डोमेन है, ये ऑटो फॉस्फोराइलाइट करके यहाँ पे जो मेरा पे ये है, जो ये थायरोस, ये जो है मेरा बेसिकली, इसको मैं बोल इंट्रासेल्युलर डोमेन, थायरोसिन काइनेज, यहाँ पे मेरे जो है वो थायरोसिन लोकेटेड है। तो यानी ये जो मेरे दो हाथ है, वो ये इंट्रेंसिक पाथवे के जो पार्ट है, यानी यहाँ पे जो थायरोसिन रेसिड्यूज है, उसका इसने क्या कर लिया, फॉस्फोराइलेशन कर लिया। अभी इसका फॉस्फोराइलेशन हो गया, वो अट्रैक्ट करता है दो चीजों को, सेल्फ हाइड्रल प्रोटीन यानी SH2 को उसने SH2 को उसने एक्टिवेट किया, अट्रैक्ट किया अपनी ओर फॉस्फोराइलेटेड थायरोसिन ने। अभी जो फॉस्फोराइलेटेड थायरोसिन है, वही उसको अट्रैक्ट करके उसके साथ बाइंड कर सकते हैं, बाकी सेल्फ हाइड्रल प्रोटीन दूसरों के साथ बाइंड नहीं करेगा। ठीक है, अभी सेल्फ हाइड्रल प्रोटीन ने क्या किया है, उसके साथ जाके बाइंड हो गया सेल्फ हाइड्रल प्रोटीन। अभी सेल्फ हाइड्रल प्रोटीन एक्टिवेट हो गया, और इसने अभी सिग्नल किसको भेजा, सन्स ऑफ 7 प्रोटीन ने इसको, सन्स ऑफ 7 प्रोटीन को इसने सिग्नल भेजा। सन्स ऑफ 7 प्रोटीन ने किसको सिग्नल भेजा, राफ काइनेसिस। अभी राफ काइनेसिस के पास साइक्लिक एएमपी था, यानी साइक्लिक सी, एक मिनट यार, जीटीपी का दूसरा क्या था, जीएपी, वेट वेट वेट, हाँ, जीडीपी, सॉरी, जीडीपी। जीडीपी के रफ काइनेसिस ऑलरेडी बाइंड किसके साथ था, जीडीपी के साथ था, बट जैसे ही इसको सिग्नल भेजा, इसके पास जीटीपी आके बाइंड हो गया,
और राफ काइनेस क्या हो गया, ओवर एक्टिव। राफ काइनेस ओवर एक्टिव होके किसको सिग्नल भेजा, राफ प्रोटीन काइनेसिस को उसने सिग्नल भेजा। अभी राफ प्रोटीन काइनेसिस ने किसको सिग्नल भेजा, मैप काइनेसिस को। और मैप काइनेसिस ने किसको उसने मैप काइनेसिस का फुल फॉर्म क्या है, माइटोजेनिक एक्टिवेटिंग प्रोटीन। यही है माइटोजेनिक एक्टिवेटिंग प्रोटीन। वेट मैं आपको पढ़वा भी देता हूँ। माइटोजेनिक एक्टिवेटिंग प्रोटीन काइनेसिस, माइटोजन एक्टिवेटिंग प्रोटीन काइनेसिस। अभी मैप काइनेसिस ने क्या किया, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स को एक्टिवेट किया। ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स ने इसने ट्रांसलोकेटेड किया किसके अंदर, विद इन द न्यूक्लियस। और इसका ट्रांसलो और इसने एक्टिव, पर वो यहाँ न्यूक्लियस में जाके वो क्या हो गए, एक्टिवेट हो गए और एक जीन ट्रांसलोकेट किया ये ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स को इनसाइड द न्यूक्लियस। और उसने एक डीएन एक जीन पे जाके उस वो एक्टिवेट हो गए और एक जीन पे जाके अपनी इफेक्ट शो की। और वो इफेक्ट उसने एमआरएनए बनाया और एमआरएनए को हमने बाहर भेजा और बाहर जाके क्या बनाया, ट्रांसलेशन हुआ। ट्रांसलेशन हुआ और न्यू प्रोटीन सिंथेसिस हुआ। बेसिकली यहाँ पे लाइगेंड आया। लाइगेंड्स क्या हो सकते हैं, इंसुलिन और उसके ग्रोथ फैक्टर्स। और ये थायरोसिन काइनेस एक्टिवेट हो गया, इसने फॉस्फोराइलेट किया, सेल्फ हाइड्रल प्रोटीन आया और उसके साथ बाइंड किया। सेल्फ हाइड्रल प्रोटीन ने सिग्नल भेजा किसको, सन्स ऑफ सेवन प्रोटीन को। राफ राफ काइनेसिस को, रास काइनेसिस को सिग्नल भेजे, जीडीपी को छोड़ा, जीडीपी को एक्टिवेट बाइंड किया, ओवर एक्टिव हो गए राफ प्रोटीन काइनेसिस। और राफ प्रोटीन काइनेसिस ने सिग्नल भेजा मैप काइनेसिस को। मैप काइनेसिस ने ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर एक्टिवेट किए और उसको ट्रांसलोकेट किया किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। उसने एक जीन देखा, वहां पे जाके अपना इफेक्ट शो किया और इफेक्ट में एमआरएनए बनाया, एमआरएनए को बाहर भेजा और ट्रांसलेशन करवाया और प्रोटीन सिंथेसिस हुआ। अभी हमारा दूसरा है थायरोसिन काइनेस एसोसिएट रिसेप्टर। थायरोसिन काइनेस एसोसिएट रिसेप्टर में क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन, फिर हमारे इंटरल्यूकिन, फिर हमारे साइटोकाइनेंस, बी सेल्स, टी सेल्स, यानी ये क्या करते हैं पता है, यहाँ पे लाइगेंड आया, ये लाइगेंड आया, इसका लाइगेंड आया और ये दो रिसेप्टर्स है, लाइगेंड आके बाइंड किया और ये रिसेप्टर्स क्या हो गए पता है, डाइमराइजेशन करना स्टार्ट कर लिया। डाइमराइजेशन हुआ रिसेप्टर का और उसने डाइमराइजेशन हुआ और उसने एक यूनिक टाइप ऑफ थायरोसिन काइनेस को एक्टिवेट किया। और वो यूनिक टाइप ऑफ थायरोसिन काइनेस को हम क्या बोलते हैं, जेनिन काइनेसिस। जेनिन काइनेसिस, और उसको जैक भी बोलते हैं। ये जेनिन काइनेसिस और जैक ने उसको अट्रैक्ट किया। अभी ये जेनिन काइनेसिस और जैक क्या करेंगे पता है, यहाँ पे भी एक थायरोसिन रेसिड्यूज है, यहाँ पे भी थायरोसिन रेसिड्यूज है। यहाँ का जेनिन काइनेसिस यानी जैक ने यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन करवाया और यहाँ के जेनिन काइनेसिस ने यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन करवाया, यानी क्रॉस फॉस्फोराइलेशन करवाया। और ये आफ्टर फॉस्फोराइलेशन जैसे उसने सेल्फ हाइड्रल प्रोटीन को एक्टिव अट्रैक्ट किया था, वैसे ही आफ्टर फॉस्फोराइलेशन यहाँ पे स्टेट प्रोटीन को इसने अट्रैक्ट किया। और स्टेट प्रोटीन बेसिकली उसका फुल फॉर्म क्या है, सिग्नल ट्रांसड्यूटर एक्टिवेटिंग ट्रांसक्रिप्शन, यानी इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है, आप चिंता मत करो दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जाके स्टेट प्रोटीन्स बाइंड हो गए दोनों से आफ्टर। अभी ये जो स्टेट प्रोटीन से बाइंड हो गए, अभी वो वहां से एक्टिवेटर से और डिटैच हो गए और वो आपस में बाइंड हो गए। और अभी ये जो दो डाइमर है वो अभी अपने आप ही ट्रांसलोकेट हो जाएंगे न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस में एक जीन को साथ जाके बाइंड करेंगे और उसका अपना ट्रांसक्रिप्शन दिखाएंगे और ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए और फिर नया प्रोटीन सिंथेसिस बनवाएंगे। ठीक है, अभी क्या लिखा है वो हम पढ़ लेते हैं। बेसिकली व्हेन द ligand comes and binds with the tyrosine kinase associate receptor, they will lead to the dimerization of receptor and the ligand is growth hormone. This receptor do not have any intrinsic tyrosine kinase activity, यानी उसके पास कोई intrinsic tyrosine kinase activity नहीं है, but they undergoes the dimerization and they binds with the another type of enzyme, and this enzyme is not associated with particular receptor, यानी ये receptors के साथ associate नहीं यानी attract किया। and also this enzyme is tyrosine kinase plus tyrosine in
द रिसेप्टर एंड थायरोसिन बोथ वर इंडिपेंडेंट, यानी वो एक दूसरे से अटैच नहीं है, यानी अलग है। द These are very special tyrosine kinase and we called it the tyrosine kinesis genin kinesis। यानी जो वो ग्रीन वाला था वो क्या था, जेनन काइनेसिस। यानी ये जो है हमारा ग्रीन वाला, ये हमारा क्या है, जेनन काइनेसिस। ये जो ग्रीन वाला है वो क्या है, हमारा जेनन काइनेसिस। एंड वंस द जेनन काइनेसिस एक्टिवेटेड, दे डू द क्रॉस फॉस्फोराइलेशन विद द थायरोसिन रेसिड्यूज। जैसे यहाँ पे उसने क्रॉस फॉस्फोराइलेशन किया with tyrosine residues, and phosphorylated tyrosine residues interact with STAT protein signal transducer activator transcription। Yes, STAT की full form क्या है, signal transducer activator transcription। And now they are separate from the interaction of tyrosine residues or from the activator protein, and after separation both the STAT protein interacts with each other, and now दे विल ट्रांसलोकेट देमसेल्फ, यानी वो अपने आप ही न्यूक्लियस में गए। एंड द डाइमर्स ऑफ स्टेट स्टिमुलेट द स्पेशल टाइप ऑफ जीन टू मेक द एमआरएनए एंड स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड कन्वर्ट्स इनटू दिस। ये यानी ये जो पाथवे है हम उसको क्या बोलते हैं, जैक स्टेट पाथवे। उसमें कौन से लाइगेंड्स है, प्रोलैक्टिन हो गए, इंटरल्यूकिन 2 हो गए, साइटोकाइनिन हो गए, बी सेल्स हो गए, टी सेल्स हो गए। ठीक है, अभी हमारे पास दूसरा रिसेप्टर है थायरोसिन फॉस्फेटेज रिसेप्टर। यानी ये बेसिकली ये बहुत ही यूनिक टाइप का रिसेप्टर है। यानी ये डीफॉस्फोराइलेट करता है, यानी सपोजिंग यहाँ पे फॉस्फोराइलेटेड थायरोसिन काइनेज होता है तो उसमें से फॉस्फेट को रिमूव कर देता है। ठीक है, और इसका एग्जांपल क्या है, CD45। द थायरोसिन काइनेज फॉस्फेट रिपेयर phosphate receptor have the unique type of internal domain, and when this domain is activated lead to यानी ये जैसे ही एक्टिवेट होगा इसको lead to the dephosphorylation of dephosphorylation basically means the removes the phosphate from other protein। इसका एग्जांपल कौन सा है, CD45। हमारे पास आ गया सेरेनिन और थ्रियोनिन काइनेज। यानी यहाँ पे जो है यूनिक टाइप ऑफ लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन है। ये जो यूनिक टाइप ऑफ लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन है, या बेसिकली यहाँ पे लाइगेंड आया, बाइंड किया इंट्रासेल्युलर डोमेन को, इसने एक्टिवेट किया, और इंट्रासेल्युलर डोमेन ने जो फॉस्फोराइलेशन करवाना था वो, यानी सब जगह हमारे पास किसका, थायरोसिन का फॉस्फोराइलेशन होता है, बट यहाँ पे जो फॉस्फोराइलेशन होता है वो थायरोसिन का नहीं, सेरेनिन और थ्रियोनिन का होता है। इसलिए इसका नाम क्या है, सेरेनिन थ्रियोनिस काइनेज रिसेप्टर। और ये जो serotonin threonine kinase receptor, here the unique type of ligand binds and we called it beta transforming growth factor। यानी जो ligand है यहाँ, इसका फुल फॉर्म क्या है, बीटा ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर। यहाँ का जो ligand है उसका नाम क्या है, बीटा ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर। एंड अगेन it is an one pass receptor and it have the intrinsic pathway and that will lead to the phosphorylation of threonine and serine residues. Because of this mechanism, we called it serine threonine kinesis and guanylyl cyclase receptor। यानी कि यहाँ का जो भी लाइगेंड है उसका नाम क्या है, ANP, एट्रियल न्यूट्रिक, वेट उसका फुल फॉर्म क्या है, एट्रियल नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड, एट्रियल नेट्रिक यूरेटिक पेप्टाइड। यानी कि ये जो लाइगेंड है उसका फुल फॉर्म क्या है, एट्रियल नेट्रिक नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड। यानी बेसिकली ये जो इंट्रासेल्युलर डोमेन है, जैसे हमारे सब में क्या था, एडिनाइल साइक्लेस, यहाँ पे क्या है, ग्वानानाइल साइक्लेस। ग्वानानाइल साइक्लेस क्या करता है, जीडीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट, साइक्लिक जीएमपी में कन्वर्ट करता है। साइक्लिक जीएमपी का लेवल बहुत ही हाई होता है, वो प्रोटीन काइनेस जी को एक्टिवेट करता है। प्रोटीन काइनेस जी क्या करता है, फॉस्फोराइलेशन करता है, यानी इनएक्टिव को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अभी हमारे पास हमारे पास ग्वानालाइल साइक्लेस दो टाइप के होते हैं, एक तो है वन पास रिसेप्टर और एक हमारा किसमें, साइटोसोल में प्रेजेंट होता है। अभी साइटोसोल में जो प्रेजेंट होता है वो उसको एक्टिवेट कौन करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, और नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीजिंग प्रोडक्ट उसको क्या करते हैं, एक्टिवेट करते
है ग्वानालाइल साइक्लेज रिसेप्टर को, ठीक है। अभी पर is one pass guanylyl cyclase receptor. The ligand of this receptor is ANP, atrial natriuretic peptide. Internal domain of this receptor converts the GTP to the cyclic GMP, and we called it guanylyl cyclase. And the enzyme name is guanylyl cyclase, and the activity associated with guanylyl cyclase is called as guanylyl cyclase receptor. इसका नाम क्यों guanylyl cyclase है? क्योंकि इसकी एक्टिविटी guanylyl cyclase से associated है, इसकी वजह से। The high amount of cyclic GMP activates the protein kinase G and lead to the phosphorylation of certain प्रोटीन्स एंड ऑल्टर दी एक्टिविटी। ग्वानालाइल साइक्लेस हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक हो जाता है वन पास रिसेप्टर और दूसरा हमारे क्या प्रेजेंट होता है साइटोसोल में। जो साइटोसोल में जो प्रेजेंट होता है ग्वानालाइल साइक्लेस which are cytosolic, and they are activated by the nitric oxide, and this nitric oxide goes into the cell and stimulates them, and guanylyl cyclase lead to the conversion of say GTP to the cyclic GMP। अभी हमारे पास वन पास रिसेप्टर या फिर एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर कितने टाइप के हैं? 5 टाइप के। कौन से? प्रोटीन काइनेज रिसेप्टर, प्रोटीन काइनेज एसोसिएट रिसेप्टर, फिर हमारे पास कौन सा है? थायरोसिन फॉस्फेटेज रिसेप्टर। तीसरा हमारे पास कौन सा है? सीरीन थ्रियोनिन काइनेज रिसेप्टर। और पांचवा कौन सा है? ग्वानालाइल साइक्लेस रिसेप्टर। ठीक है, यहाँ पे हमारा पूरा एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन कंप्लीट होता है। आपको कुछ भी डाउट हो एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन में तो आप मेरे को ज़रूर से बताइए। हमने इस क्लास में जो डिस्कस किया है इन डेप्थ वो है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। बाकी के जितने भी रिसेप्टर्स थे सर्पेंटाइन और आयन चैनल्स वो हमने आगे के वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। ये सिर्फ क्विक ओवरव्यू था। आपको ये ओवरव्यू से समझ में नहीं आया तो आगे में पूरा इन डेप्थ है वो आप देख